Good. Ajay has also joined. He was sending request. इंटीग्रल निकालना होता था. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं ये सीखा था, राइट? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हर एक में आपको निकालना ही निकालना है. इन एडिशन टू दैट आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है, बिकॉज कंप्लीट सॉल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट? तो हमने लास्ट टाइम ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं यहां तक हमने किया था, राइट? और हमारे जितने भी एग्जाम्पल थे, यू कैन सी इन दीज एग्जाम्पल्स कि हमारा राइट हैंड साइड पर यहाँ पर जीरो दिया हुआ था. तो राइट हैंड साइड पर जीरो दिया था, दिस मीन्स कि हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें था ही नहीं. पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा जीरो था, राइट? नाउ लेट अस कम to the working rules for finding the particular integrals of different cases. So let us take these cases one by one. So working rules for finding the particular integral of differential equations f d by equal to r. एफ डी मैंने फंक्शन ऑफ डी का के लिए एफ डी लिख दिया है, वो पूरा जो भी होता है डी स्क्वायर प्लस प्लस करके उसको मैंने एफ डी लिख दिया है. सो एफ डी बाई इक्वल टू आर. ओके, तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट अस सी इन सम स्पेशल केसेस. सो फर्स्ट केस आई टेक So let us take this first case when this right hand side means r equal to e to the power, let us say ax. Okay, if you have r equal to e to the power ax, this means on the right hand side if you have e to the power ax, then your particular integral is 1 over f d e to the power ax, which is equal to 1 by f a e to the power ax. Okay, provided f a is unequal to 0. मीन्स डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? बट इफ नाउ इफ f a equal to 0, now if f a equal to 0, okay, then in this case हम क्या करते हैं, then 1 over f d e to the power ax, this is equal to x 1 over f a e to the power ax. इसका क्या मतलब हुआ, that if denominator equal to 0, then what do we do? So we differentiate the denominator with respect to d and then we substitute d equal to a. Okay, in this case हम क्या करते हैं, we multiply by x, यहाँ पर एक multiply कर देते हैं x का, and we differentiate the denominator with respect to d and then we substitute d equal to a. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, in this case if f a equal to 0, then we multiply by x
and differentiate the denominator with respect to d and then substitute d equal to a. Okay. ये करते हैं हम. Now if suppose if f double prime a f prime a is again equal to 0. So again if this denominator equal to 0, okay, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर again we multiply by x, we differentiate the denominator with respect to d and then we substitute d equal to a. Okay, so if f prime a equal to 0, then your particular integral 1 over f d e to the power ax, this is equal to x time x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा, ये f डबल प्राइम a e to the power ax. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 होता है तब हम क्या करते हैं कि वी मल्टीप्लाई बाय x एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू d, देन वी सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू a. सो अगेन सपोज f डबल प्राइम भी हमारा 0 हो जाता है, तो देन अगेन वी डू द सेम प्रोसीजर. ओके, सो एंड देन वी गेट द रिजल्ट. So this is how we solve these type of differential equations. This is how we find out particular integral for these type of differential equations. Okay, so again मैं यहाँ पर एक note लगा देती हूँ. Then again if f prime a equal to 0, then we multiply by x and differentiate the denominator with respect to d and then substitute d equal to a. ओके, सो हम ये इस तरह से करते हैं. नाउ लेट अस टेक एग्जांपल्स. सो आई टेक फर्स्ट एग्जांपल. सॉल्व d2 by over dx square okay minus 2k dy by dx plus k square by equal to e to the power x. So you can see from here कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हमारा e to the power x है. Now we want to solve this. तो हमारा इसमें सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड देन फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आपने लास्ट टाइम सीखा था. So write down auxiliary equation, solve this auxiliary equation, get the roots, and then write down complementary function, and after that start for particular integral. So let us do it. तो पहले हम complementary function निकालते हैं. क्या आ गया, ये हमारी auxiliary equation क्या आई, auxiliary equation is d2 by so d2 minus 2k d प्लस के स्क्वायर बाई के इक्वल टू 0. राइट हैंड साइड पर जो कुछ भी है उसे हमने 0 रख दिया. ओके, नाउ दिस इक्वेशन इज d माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 0. ओके, सो यू गेट टू रूट्स d इक्वल टू k एंड k. ओके, सो इफ यू हैव टू इक्वल रूट्स, ओके, तो हम क्या करते हैं, एंड k की वैल्यू रियल है,
देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वो जो इक्वल रूट्स के केस में हमारा क्या था, C1 प्लस C2x e टू द पावर mx था, तो e टू द पावर m की जगह हमारा यहाँ पर आ जाएगा kx। तो ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ द सेकेंड थिंग इज टू फाइंड आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज, लेट अस चेक पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल को मैं PI से लिख रही हूँ। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 ओवर एफ डी, दिस मीन्स 1 ओवर एफ डी का क्या मतलब हुआ, ये पूरा वाला फंक्शन। सो डी स्क्वायर माइनस 2kd प्लस के स्क्वायर, ओके। एंड फिर एफ डी ई टू द पावर ax वहां पर लिखा था, क्योंकि राइट हैंड साइड पर e टू द पावर ax था, यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड पर क्या है, e टू द पावर x। So I write down here e to the power x. Okay. Now let us check. Now substitute d equal to a. तो यहाँ पर a हमारा क्या है, 1 है, e to the power ax में a 1 है, so हम यहाँ पर 1 रख देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 ओवर 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर e to the power ax और e to the power x, right? अब दिस थिंग इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस के होल स्क्वायर e टू द पावर x, ओके। तो हमारा ये आ गया सॉल्यूशन वेयर k शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ओके, अदरवाइज हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ओके। सो k शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड नाउ अवर सॉल्यूशन इज y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने निकाला था, वो क्या आया था हमारा, C1 प्लस C2x। मैम ये पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करा है सेकंड स्टेप में? अभी फिर से बताती हूँ आपको, यस मैम, ये रिपीट कर दीजिए। अभी बताती हूँ, एक सेकेंड रुको। देखो इसका रूल को पढ़ लो ध्यान से, रूल को एक बार पढ़ो कि वर्किंग रूल हमारा क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का। इफ यू हैव इक्वेशन ऑफ द टाइप एफ डी बाई इक्वल टू 0, एफ डी मैंने उसके लिए लिख दिया है जो हम डी की टर्म में जो हमारी इक्वेशन लिखते हैं उसके लिए मैंने फंक्शन ऑफ डी करके लिख दिया है, जनरलाइज टर्म लिख दिया है और कुछ नहीं है। तो एफ डी बाई इक्वल टू आर करके हमारी इक्वेशन आती है। तो जब पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखते हैं तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाता है इसका 1 ओवर एफ डी ई टू द पावर ए एक्स, ओके। तो 1 ओवर एफ डी का क्या मतलब है कि 1 ओवर जो भी हमारा फंक्शन था, जैसे इस एग्जांपल में 1 ओवर एफ डी, माने एफ डी हमारा क्या है, ये हमारा एफ डी है, यहाँ पर ये पूरी ये जो चीज है ये हमारी एफ डी है ना। तो एफ 1 ओवर एफ डी, तो मैंने ये सारा लिख दिया, डी स्क्वायर माइनस 2kd प्लस 2 स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पर हमारा था e टू द पावर x, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 ओवर एफ डी ई टू द पावर ए एक्स। यहाँ क्यों था e टू द पावर ax, क्योंकि राइट हैंड साइड पर हमने ये लिया था e टू द पावर ax, ओके। तो हमारा यहाँ पर राइट हैंड साइड पे इस एग्जांपल में दिया है e टू द पावर x, तो मैंने यहाँ पर e टू द पावर x लिख दिया, राइट। अब हमने क्या किया कि वी पुट d इक्वल टू a, तो यहाँ पर d इक्वल टू a कैसे, a क्या है यहाँ पर हमारा 1, तो हमने यहाँ पर d में सब जगह जहां जहां d है वहां 1 सब्सिट्यूट कर दिया, तो ये 1 स्क्वायर मीन्स 1 है, 2kd d भी 1 है, सो d ये आ जाएगा 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर और e टू द पावर x एज इट इज आ गया। बस फिर उसके बाद तो इसी को 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इज 1 माइनस के होल स्क्वायर, तो उसको लिख दिया है e टू द पावर x, और यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, ओके। एंड हियर बट दिस k शुड नॉट बी इक्वल टू 1, अदरवाइज ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड देन, ठीक है। यस मैम आ गया। अभी और भी एग्जाम्पल करेंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, ये और अच्छे से आ जाएगा। सो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आता है, रूल से भी ज़्यादा। मैम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना।
Okay. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Now solve d2 by over dx square plus 6 dy by dx plus 9 by equal to 5 e to the power 3x. Now let us solve it. तो फिर वही हमारा प्रोसीजर है टू फाइंड आउट ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड देन फाइंड आउट रूट्स एंड देन राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. So let us find out auxiliary equation. So write down auxiliary equation. Auxiliary equation हमारी क्या आ जाएगी? d स्क्वायर, अब हम d की टर्म में लिख रहे हैं तो d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 एंड बाई दिस इज इक्वल टू 5. ऑक्सिलरी इक्वेशन है तो राइट हैंड साइड पर जो कुछ भी है उसको हमने जीरो कर दिया, राइट. तो राइट हैंड साइड इज रिप्लेस्ड बाय जीरो. सो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिखा और राइट हैंड साइड को हमने जीरो रख दिया. नाउ वी गेट रूट्स. सो रूट्स निकाल लो, ये क्या आ गए? सो ये दिस इज डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 9 के बाय इक्वल टू 0. यहाँ से हमारे रूट्स क्या आ गए? सो देयर फोर डी स्क्वायर, सो डी प्लस 3 ओके, एंड यहाँ पर भी प्लस 3 डी प्लस 3 ओके, एंड ये आ गया आपका दिस इज इक्वल टू 0. सो ये आ गया आपका डी प्लस 3 इक्वल टू 0. तो हमारे रूट्स आ गए डी इक्वल टू -3 एंड -3. सो अगेन यू हैव इक्वल रूट्स. ओके, सो इक्वल रूट्स आए हैं एंड रियल है, सो यू कैन राइट डाउन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. सो राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 प्लस c2x e टू द पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर? -3x. सो दिस इज -3x, right, because our roots are equal and in case of equal roots we write down its solution in this form, right. अब हमारा है particular integral. So let us find out particular integral. So how to find out particular integral? So particular integral के लिए this is 1 over fd. तो fd क्या है हमारा? d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9. तो d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 मैंने यहाँ लिख लिया. अब क्या है, राइट हैंड साइड पे हमारा जो भी लिखा होगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं. ओके, सो राइट हैंड साइड पर हमारा क्या था? 5 e टू द पावर क्या दिया है? 3x, राइट. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 ओवर fd और जो भी राइट हैंड साइड पर दिया है हमें फंक्शन. ओके, तो ये आ गया हमारा. नाउ दिस इज इक्वल टू, तो 5 को तो हमने यहाँ रख दिया, ओके, एंड 1 ओवर ये आ गया हमारा डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 एंड e टू द पावर 3x. अब हम क्या करते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेप में? वी सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू a. सो d इक्वल टू a का क्या मतलब है कि हमारे पास a क्या है यहाँ पर? हमारा a है यहाँ पर 3. ओके, सो ये 3 हम इस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये क्या आ गया? 9 प्लस 18 प्लस 9, राइट, एंड e टू द पावर 3x को मैं एज इट इज लिख देती हूँ. ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर अब क्या आ जाएगा आपका? दिस थिंग इक्वल टू 5 बाई 36 e टू द पावर 3x. और यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया. सो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड देन you write down complete solution. So complete solution is, now the complete solution is y equal to complementary function plus particular integral. So complementary function हमने निकाल ही लिया है plus particular integral. तो complementary function हमारा क्या आया था? c1 plus c2x e to the power -3x plus
5/36e⁻3x. दिस इज हाउ वी डू इट. सो आपने देखा कि ये कितने सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं. ओके ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आराम से कर सकता है कोई भी. नाउ लेट अस डू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल. This example says d2 by over dx square minus 6 dy by dx plus 9 by equal to 6 e to the power 3x plus 7 e to the power minus 2x minus थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना. minus log 2. ओके मैम. ठीक है. तो अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें कि राइट हैंड साइड पर ये इस तरह की टर्म्स दी हुई हैं. सो लेट अस डू इट. तो जैसा कि हमको मालूम है, इन ईच केस वी हैव टू फाइंड आउट रूट्स and then we have to write down complementary functions. So first find out roots. Now you know how to find out roots. So write down auxiliary equation, get roots, and then write down solution. So auxiliary equation in this case is d square minus 6d plus 9, okay, equal to by equal to 0. राइट हैंड साइड पर हमारा जो कुछ भी लिखा है उसको हमने पूरे को 0 रख दिया. ओके तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई. अब जब ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई तुम्हारी, तब तुमको क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है. सो सॉल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के को सॉल्व कर लो. तो ये हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, -60 + 9 = 0. तो हमारे रूट्स यहाँ पर क्या आ गए, d = 3 and 3 है. राइट आपको निकालने आते हैं, अब कैसे निकालते हैं. सो मैंने यहाँ पर लिख दिया है d = 3 3 एंड वंस यू गेट रूट्स, यहाँ पर यू कैन सी कि दीज आर इक्वल रूट्स एंड दे आर रियल रूट्स. सो यू कैन राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. सो राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विच इज c1 + c2 x e⁻³ 3x. राइट तो ये तो आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब हमको लिखना है पर्टिकुलर इंटीग्रल. So let us write down particular integral. So particular integral in this case is particular integral. This is equal to 1 over fd, where fd is d² minus 6d plus 9. एंड फिर जो भी राइट हैंड साइड पे फंक्शन हमारा लिखा होता है हम पूरा लिख लेते हैं. तो हमारा राइट हैंड साइड पर है 6e⁻³ 3x plus 7 e⁻³ -2x minus log 2. राइट तो हमारी बेसिकली ये कितनी टर्म है, तीन टर्म्स है हमारी. राइट तो हम तीनों को अब क्या करते हैं कि अलग अलग कर लेते हैं, बिकॉज तीनों के केस में अलग अलग होगा. सो ये अलग अलग कर लेते हैं. तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं. 6 को मैं यहाँ लिख लिया है d² - 6d plus 9, डिनोमिनेटर में आ गया, and e⁻³ let us write down here plus 7, and similarly write down the second term which is d² - 6d plus 9 and e⁻² अब log का क्या करें, तो log को तुम्हें मालूम है कि log 2 है. तो log 2 क्या है हमारा, log 2 इज ए कांस्टेंट. तो हम log 2 को लिख सकते हैं -log 2, इसको यहाँ लिख दो -log 2, एंड यहाँ पर हमने लिखा d² - 6d plus 9, एंड यहाँ पर मैं e⁻0 लिख दूँ अगर, तो ये काम चल जाएगा, है ना. यहाँ पर हमारा क्या है e⁻0x, so e⁻0 is 1. तो हम इस तरह से करके इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो जहाँ कहीं भी कांस्टेंट है और हमें इस तरह से सॉल्व करना पड़े तो हम कर सकते हैं आराम से. तो लेट अस डू इट. तो अब ये क्या आ गया आपका, अब हमें क्या करना है, 6 तो एज इट इज आ जाएगा. नाउ यू सब्स्टिट्यूट d = 3. तो d = 3 रखने से हमारा क्या हो जाता है, d = 3 रखो इसमें.
तो क्या हुआ ये 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9 ई टू द पावर 3x। तो यहाँ पर देखो 9 18 और ये 0 हो जाएगा आपका, ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, Yes, ma'am. है ना। और डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तब हम क्या करते हैं, इन दिस केस व्हेन डिनोमिनेटर इज 0, तो ये हमारा यहाँ पर मैं रेड से लिख रही हूँ अब कि जब इस तरह का होता है तो हम क्या करते हैं कि वी मल्टीप्लाई इट बाई एक्स। तो यहाँ पर मैं x से एक मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ओके। और फिर मैं क्या करती हूँ कि ये जो चीज़ है हमारी, ये इसको, इस वाली टर्म को आई डिफ्रेंशिएट द डिनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू d। तो ये क्या आ जाएगा 2d माइनस 6, राइट। सो 2d माइनस 6 ये यहाँ से आ गया। रिपीट करना, हम क्या करते रिपीट हैं, करना इसको। हाँ देखो डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को हम विथ रेस्पेक्ट टू d डिफ्रेंशिएट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। तो आपने अगर डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया यहाँ पर, ये डिनोमिनेटर फर्स्ट टर्म देखो, केवल फर्स्ट टर्म देखो। तो फर्स्ट टर्म को जब आपने देखा तो इसमें फर्स्ट टर्म में है d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, राइट। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ गया, विथ रेस्पेक्ट टू d यू आर डिफ्रेंशिएटिंग, तो 2d माइनस 6 आ गया आपका, ठीक है। अब जब 2d माइनस 6 आ गया तो ये 2d माइनस 6 लिख दिया और e टू द पावर 3x ये लिख दिया और x का हमने मल्टीप्लाई किया। रूल में है दैट वी मल्टीप्लाई x, वी डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू d एंड देन वी सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू a, राइट। तो यहाँ पर a हमारा है 3, देन नाउ अगेन सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू 3, तो क्या होता है, अगेन यू गेट f प्राइम d इक्वल टू 0। ये क्या है, अब हम आपका f प्राइम d है, बट f प्राइम इज अगेन 0। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से रखेंगे d इक्वल टू a। d इक्वल टू a जब रखोगे तो आप देखोगे कि ये जो डिनोमिनेटर है फिर से 0 आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं। Yes, ma'am. तो अब क्या करें, अब हम भी अगेन मैं पहले केवल फर्स्ट टर्म सॉल्व कर रही हूँ। तो ये जब आपने रखा तो ये अगेन ये 0 आ गया, ओके। 2 टाइम्स 3 माइनस 6, ये फिर से 0 आ गया। तो अगेन व्हाट डू वी डू, अगेन वी डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू d। तो 6 तो ऐसे ही आ गया एंड ऑल्सो वी मल्टीप्लाई बाई x, तो x से x मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ गया, राइट। एंड 1 ओवर, अब इसको करो डिफरेंशिएट तो क्या आ गया 1 ओवर 2, you Yes, ma'am. differentiate the denominator with respect to d again, तो 1 by 2 आ गया e to the power 3x, राइट। तो यहाँ से ये तुम्हारी फर्स्ट टर्म जब सॉल्व किया आपने, तो फर्स्ट टर्म सॉल्व करने के बाद आपकी फर्स्ट टर्म ये आ गई, दिस इज इक्वल टू ओके 6 बाई 2, तो 6 बाई 2 है ये, तो 3 हो गया आपका, ओके। सो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 2 से ये मैंने काट दिया, 3x स्क्वायर ई टू द पावर 3x, ये आ गया इसका फर्स्ट टर्म से, ओके। तो अभी हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म की है। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड टर्म। अब मैं सेकंड टर्म को देखती हूँ, तो मैं यहाँ जाती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि मेरा सेकंड टर्म में क्या हो रहा है। सो सेकंड टर्म में क्या हो रहा है, दिस इज 7 तो मैं एज इट इज लिख दूंगी। अब आई सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू -2, तो d इक्वल टू -2 रखो तो क्या आ गया, ये -2 स्क्वायर -6 इंटू -2 प्लस 9 e टू द पावर -2x, ओके। और यहाँ पर थर्ड टर्म में क्या है, थर्ड टर्म में है log 2 तो बाहर है, एंड यहाँ पर हमें d इक्वल टू क्या रखना है 0, तो ये 0 हो गई फर्स्ट टर्म, माइनस सेकेंड टर्म भी 0 हो गई, प्लस 9 एंड e टू द पावर 0x लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको दिखाने के लिए लिख रही हूँ, ओके। सो e टू द पावर 0x ये आ गया आपका। अब इसको बस करते चले जाओ, तो ये सेकेंड टर्म से आपका क्या आ गया 7। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो 0 तो नहीं आ रहा, ये बस चेक कर लो। तो दिस इज 4, ओके
4 plus 12 plus 9, so it is not 0. Okay, so ये क्या आ गया 7/25. Okay, 7/25 e to the power minus 2x. तो ये आ गई आपकी सेकेंड टर्म, एंड थर्ड टर्म आ गई -1/9 log 2. ठीक है, सो बस यही आपका आंसर हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल के. सो फाइनली यही वाली टर्म्स, सो ये आंसर में पूरी टर्म्स आ गई आपकी 7/25 e to the power minus 2x minus 1/9 log 2. और अब हमारा सॉल्यूशन वी कैन राइट डाउन. सो कंप्लीट सॉल्यूशन इज, द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y equal to complementary function in this case is c1 plus c2x e to the power 3x एंड कॉम्प्लीमेंट्री ये सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल ये हमारा आ ही गया जो अभी हमने निकाला है, e to the power 3x plus 7/25 e to the power minus 2x minus 1/9 log 2. सो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया. आया कि नहीं ये समझ में? आ गया मैम. गुड, अगर आ गया देन वी कैन डू फर्दर. So now let us do this next example. Okay, this says d2y over dx square. हाँ, मैम जैसे इसमें log 2 में e की पावर नहीं थी कुछ, हम्म, तो उसमें जबरदस्ती हम लोग e की पावर 0 डाल दिए. इसलिए डाल दिए क्योंकि वो जो है वो कांस्टेंट था, और हम अभी तक हमने सिर्फ एक यही वाला लर्न किया है, और इसको हम ई से अगर करें तो हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते थे, अदरवाइज हाँ, तो इसका ऐसे तो- पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलता. ऐसे तो हर क्वेश्चन में आप कर सकते हैं, अगर e हो नहीं हो जबरदस्ती e का पावर 0 डाल दिए और उसको सॉल्व कर दिए. जबरदस्ती तब डालेंगे जब आपको कांस्टेंट दिया हुआ हो. कांस्टेंट नहीं दिया हुआ तो कैसे करोगे? अगर कांस्टेंट टर्म दी है तो आप उसको सॉल्व करना चाहते हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखोगे? तो मैम sin x होता है कुछ और होता हाँ, है, तब उसके अलग रूल है, तब उसके अलग रूल हैं. अभी वो भी आएंगे, आपको साइन के फंक्शन आएंगे, कॉस के फंक्शन आएंगे, कई बार मिक्स भी आएंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप के फंक्शन है. तो साइन के केस में अलग रूल है और उसके कॉस के केस में अलग रूल है. पर मैं आपको कई बार ये चीज बताती हूँ कि एक ही क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व हो जाता है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में. ठीक, तो जैसे साइन का कोई फंक्शन हो तो साइन को भी हम ई की फॉर्म में लिख भी सकते हैं ना. तो साइन का फंक्शन है या हाइपरबोलिक फंक्शन है लाइक साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो वो भी ई की फॉर्म में आ जाते हैं. तो साइन और कॉस के जहां होते हैं तुम ई की फॉर्म में भी इन प्रिंसिपल सॉल्व कर सकते हो उसको इफ यू लाइक. ओके, बट साइन का अलग से रूल भी है, तुम डायरेक्टली साइन के उसमें भी सॉल्व कर सकते हो, और साइन और कॉस का एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम रूल है. ओके, सो अभी आएंगे उसमें आगे. अभी मैं पहले एक एक कराना शुरू कर रही हूँ स्पेशल केस. तो पहला स्पेशल केस मैंने लिया था जहां पर कि तुम्हें राइट हैंड साइड पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है. ओके, सो d2 by over dx square minus 3 dy by dx plus 2 by equal to e to the power x. तो ये तो उस पहले वाला जो क्वेश्चन किया है उससे इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, राइट. सो करो, बताओ क्या आया. सो राइट डाउन ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई आपकी? डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2. ओके, एंड राइट हैंड साइड पर हम क्या करते हैं, जो कुछ भी हो उसको हम सीधे 0 रख देते हैं. ओके, सो वी have replaced this right hand side equal to 0 and now we get roots. So find out roots. So ये क्या आ गए आपके? d square minus d minus 2d plus 2, okay,
इक्वल टू 0 एंड यहाँ से आ गया आपका d माइनस 1 d माइनस 2 d माइनस 1 इक्वल टू 0. सो हमारे रूट्स आ गए d माइनस 1 and d minus 2 equal to 0. So roots are d equal to 1 and 2. Okay, so real and different roots हैं, and then you can write complementary function. So write down complementary function in this case. This is equal to, ये क्या आ जाएगा, c1 e to the power mx plus c2, तो m यहाँ पर 1 है, so c2 e to the power यहाँ पर 2, so 2x. So c1 e to the power x plus c2 e to the power 2x is your complementary function. And now you want to find out particular integral. So find out particular integral. Then particular integral in this case is 1 over fd, where fd is d square minus 3d plus 2, and राइट हैंड साइड पर है हमारा e to the power x. And now you put d equal to a, so this means this is equal to 1 over यहाँ पर रख दो, तो 1 square minus 3 times 1 plus 2. तो क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर 0 हो गया. 0 हो गया. So denominator equal to 0, this means we have to differentiate the denominator with respect to d and we multiply by x. So we multiply by x, right, and differentiate the denominator with respect to d. तो इसे differentiate करो, तो ये क्या आ गया, 2d minus 3 and e to the power x. And ये आने के बाद अब हम क्या करेंगे, we substitute then d equal to a. So again substitute d equal to a, so d 2 into 1 minus 3 e to the power x. So you can see from here कि अब हमारा ये 0 नहीं है, and then this is equal to minus x e to the power x. Okay, और यही आपका particular integral आ गया. So complete solution क्या आ जाएगा, complementary function plus particular integral. So complementary function आपने निकाल ही लिया था, c1 e to the power x plus c2 e to the power 2x, and particular integral आपका आ गया minus x e to the power x. So you can see from here कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है डिनोमिनेटर का, ये डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं आ रहा. अगर 0 आता है then we multiply by x, we differentiate the denominator with respect to d, and then we put d equal to a. Okay, so now let us solve this question, okay, which says d square, solve this, d square minus 4d, d square plus 4d plus 3, this is equal to e to the power minus 3x. So let us do it. बताओ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ गया, इसका रूट्स निकालो. तो रूट्स क्या आ गए इसके, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन देन रूट्स. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d square plus 4d plus 3 equal to 0, right? And now solve it and get roots. तो बताओ रूट्स क्या है. -3 -1 3 और 1 -3 -1 -1 and -3. ओके, सो इसके रूट्स आ गए हमारे -1 and -3. -1 and -3. एंड ये क्या है, हमारे रूट्स रियल है एंड डिफरेंट है. तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मींस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज देन c1 e to the power minus x plus c2 e to the power minus 3x.
right? Now let us find out particular integral. So particular integral in this case is, particular integral is 1 over fd. So 1 over fd, so this means d square plus 4d plus 3, ये आ गया. एंड राइट हैंड साइड पर हमारा क्या है, e to the power minus 3x. So e to the power minus 3x. Now substitute d equal to a. So if you substitute d equal to a, तो ये क्या आ गया, this is equal to 1 over minus 3 का होल स्क्वायर plus 4 times minus 3 plus 3 e to the power minus 3x as it is. And now look at it, whether this denominator is not equal to 0 or it is equal to 0. इक्वल टू जीरो. Equal to 0. So this means हमारा ये कौन सा केस हुआ, then we differentiate the denominator with respect to d and then we put d equal to a. So we multiply by x. तो हम इसको करते हैं. So we multiply by x, differentiate the denominator with respect to d. तो ये आ गया 2d plus 4 e to the power minus 3x. And now we put d equal to a. So d equal to a का क्या मतलब हुआ, -3. So this is equal to, then this is equal to x times 1 over 2 times minus 3 plus 4 है ना डिनोमिनेटर में, एंड e to the power minus 3x. So ये आ गया हमारा, this is equal to minus 1/2 x e to the power minus 3x. एंड यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है. सो यू कैन राइट द सॉल्यूशन. सो राइट डाउन सॉल्यूशन बाय विच इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू रख दो दोनों की, यही आपका आंसर आ जाएगा, राइट. सो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं. ये आपको अच्छे से समझ. हाँ बोलो. इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो डी रूट्स है ये -3 और माइनस, इसमें c2 इक्वल e की पावर -3x, मतलब इसको बदल सकते हैं, c2 की जगह c1 अरे हो सकता है. एक मिनट मेरे को उस पर जाना दो, क्या बोल रहे हो मुझे. हाँ एक सेकेंड. क्या बोल रहे हो, अब पूछो. हाँ. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में c1 की जगह c2 और ये हो सकते हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना. कांस्टेंट है. कांस्टेंट तो आप कुछ भी अब नाम दे सकते हो, ए भी दे सकते हो, c1 c2 दे सकते हो, ओके, या mn दे सकते हो, पर mn हम उसके लिए m हमने उसके लिए यूज किया था रूट्स के लिए, इसलिए यहाँ नहीं यूज किया. बट इट इज अप टू यू कांस्टेंट का आप क्या नाम दे रहे हो. तो c से यूजुअली डिनोट करते हैं, इसलिए अगर दो कांस्टेंट हैं तो c1 एंड c2 बोल देते हैं उसको. दैट्स ऑल. ठीक है. ओके. ये तो आप नाम दे रहे हैं ना इसको कांस्टेंट को, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं. अच्छा, जैसे साइन एंड कॉस के फंक्शन हो तो आप उसको ई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आप ई की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन. बट अगर आपको साइन के लिए करना है तो साइन वाले के अलग रूल हैं, और साइन से भी हो जाता है, दोनों तरह से हो जाता है. ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टाइप, where the right hand side is, okay, so particular integral when the right hand side is sin ax. okay, तो राइट हैंड साइड sin ax है या cos ax है, दोनों के लिए सेम रूल है. ओके, so either sin ax or cos ax. okay, then this rule says that the particular integral in this case is, if you have equation of the type f d by equal to r
where r is sin ax, then the particular integral is 1 over f d square, okay, sin ax, which is equal to 1 over f minus a square sin ax if f of minus a square is not equal to 0. okay, so इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल जब हम लिखते हैं तो दिस इज इन द फॉर्म 1 ओवर एफ डी की फॉर्म में होता है ना, तो 1 ओवर एफ डी स्क्वायर मैंने क्यों लिखा है, इसका भी मीनिंग इसलिए पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होता है कि डी स्क्वायर की जगह हम केवल सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो डी स्क्वायर की जगह हम रखते हैं माइनस ए स्क्वायर. ओके, तो माइनस तो अपनी जगह आता ही आता है एंड डी की जगह ए आ जाता है, तो माइनस ए स्क्वायर करके आता है. ओके, इसका जब मैं एग्जांपल लूंगी तब और क्लियर हो जाएगा आपको. सो if in this case, if when you have right hand side equal to sin ax, we can write down particular integral 1 over f d square sin ax, which is equal to 1 over f minus a square sin ax if this denominator f of minus a square is unequal to 0. But if this is equal to 0, अच्छा, और साइन के जैसा साइन के केस में ही है वैसा ही इसके केस में भी होता है, कॉस के केस में, तो इसको भी मैं यहीं लिख देती हूँ cos ax, यहाँ पर भी मैं cos ax के फॉर्म में भी लिख देती हूँ. ओके, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर f ऑफ माइनस a स्क्वायर cos ax, ओके, if f ऑफ माइनस a स्क्वायर इज अनइक्वल टू 0. ओके, सो ये साइन और कॉस दोनों के केस में सेम रूल्स हैं. नाउ इफ सपोज this denominator equal to 0, this means f of minus a square equal to 0, then in this case what happens, now if f of minus a square equal to 0, okay, then this 1 over f d square sin ax, this is equal to b, जैसे हमने पहले किया था, we multiply by x, we differentiate the denominator, okay, with respect to d, and then we put d square equal to minus a square. Okay, so this is provided f prime d square is not equal to 0. Okay, now if again this denominator equal to 0, तो पहले की तरह हम again क्या करते हैं, now if f prime d square is equal to 0, okay, और f prime माइनस a स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, f prime माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर इसको फिर आगे जब हम करते हैं तो देन दिस इज इक्वल टू x 1 ओवर f प्राइम माइनस a स्क्वायर, ओके, एंड sin ax. Okay, and now if again this this denominator equal to 0, then now if f prime minus a square is again equal to 0, then 1 over f prime d square, इसका क्या हो जाएगा, 1 over f d square sin ax, मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अगेन वी मल्टीप्लाई बाई x, सो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, and we again differentiate the denominator with respect to d, and then we substitute d square equal to minus a square. Okay,
So provided f double prime minus a square is unequal to 0. Okay, so these are the rules for the equation if you have on the right hand side the function of sine or cos. Okay, तो sin ax या cos ax है, then ये rule हम apply करते हैं. Okay, so now let us take one example. Let me take first example. Solve d2 by over dx square plus dy by dx plus by equal to let us say sin 2x. Okay, so if you have this thing, तो फिर जैसे हम लिखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखो. ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यू कैन कैलकुलेट इन दिस केस. तो ये क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1. तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, सो दिस मीन्स डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0. तो ये किस तरह की इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, वेयर ए एंड बी बोथ आर 1. ये इस तरह की इक्वेशन है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एंड इन दिस केस हमारे रूट्स आएंगे इमेजिनरी, राइट. सो राइट डाउन दिस इक्वेशन. इमेजिनरी रूट्स हमारे कैसे निकालते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. सो नाउ फाइंड आउट रूट्स, बताओ क्या आ गए. सो डी इक्वल टू minus 1 by 2 plus minus root 3 by 2i. right. So d equal to minus 1 plus minus square root of 1 minus 4 by 2a. So 2, so ये आ गए हमारे minus 1 half plus minus root 3 by 2i. So ये हमारे imaginary roots आ गए. So they are in the form of alpha plus minus I beta. So you can write your complementary function in any one of the form. Okay, so either you can write it in cos form, in sin form, or in combined form. So complementary function I can write down. So complementary function equal to c1 e to the power alpha x, c1 e to the power alpha x. अल्फा यहाँ पर हमारा क्या है, 1/2. Okay, and cos of beta x plus c2. सो बीटा क्या है हमारा, रूट 3 बाई 2 प्लस c2. तो ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इन दिस केस इज, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1 ओवर एफ डी. तो डी स्क्वायर मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि डी स्क्वायर की जगह हम माइनस ए स्क्वायर लिखते हैं. सो 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1. ओके, और यहाँ पर क्या आएगा, राइट हैंड साइड पर हमारा जो भी कुछ लिखा है. अब हम क्या करते हैं कि केवल डी स्क्वायर की जगह हम माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, केवल इसकी जगह. ओके, तो ये क्या आ जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू, देन दिस इज इक्वल टू 1 ओवर एफ की जगह रखो माइनस ए, डी स्क्वायर की जगह रखो माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस. ओके, और ए क्या है हमारा यहाँ पर, ये है 2. ओके, तो हम क्या रख देते हैं यहाँ पर 2. सो माइनस एंड 2 स्क्वायर, और डी को हम एज इट इज रहने देते हैं. सो डी प्लस 1, एंड ये आ जाएगा साइन 2x. अब हमारा ये क्या आ गया नीचे, दिस इज इक्वल टू, ओके, ये 1 ओवर माइनस 4 प्लस डी प्लस 1 आ गया, राइट. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 ओवर डी माइनस 3 साइन 2x आ गया. अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करें. तो हम इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू, मैम उसमें हमने 1/d स्क्वायर लिया था, वो क्या था फिर. हाँ, डी स्क्वायर इसलिए लिया था कि हम डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखते हैं, इसलिए लिखा था 1 ओवर डी स्क्वायर, 1 ओवर एफ डी स्क्वायर.
नहीं आया मैम समझ में। अभी इस एग्जाम्पल को पहले देख लो, अभी समझ में आएगा, सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम पहले ये पूरा कर लो, फिर दोबारा बताती हूँ मैं इसको साइन वाले को। ओके, सो d+3 ओवर, यहाँ इस तरह का फंक्शन आता है व्हेन, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका अपोजिट साइन है प्लस, सो d+3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको ऊपर एंड नीचे भी कर दिया। तो नीचे क्या आ गया, d-3 d+3, तो ये आ गया आपका d² - 9। अब हम क्या करते हैं, फिर से हम केवल d² की जगह फिर से -a² सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो d² की जगह फिर से -a² सब्स्टिट्यूट करो, तो ये क्या आया, तो d+3 तो मैंने एज इट इज लिखा रहने दिया, और नीचे मैंने सब्स्टिट्यूट किया d² की जगह -a², तो -2² - 9 sin 2x आ गया ये। ओके, अब ये क्या आया हमारा, ये -4 - 9 तो 13 आ गया, तो -1/13 तो ये आ गया, राइट। और ऊपर हमारा और क्या है, d+3 sin 2x। अब d क्या है हमारा, d ऑपरेटर है, व्हाट इज d, d इज dy/dx। तो हम क्या करेंगे कि इसको ये जो है सॉल्व करेंगे, -1/13 तो ये बाहर है ही। अब हमारा ये है d माने d/dx ऑफ दिस थिंग। ओके, सो d/dx ऑफ दिस थिंग क्या आ जाएगा, ये d/dx है, तो d/dx ऑफ sin 2x है ये। ऑपरेटर d क्या होता है, d/d। सो इसका d/dx करो +3 sin 2x। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आया ये डिफरेंशिएट करके, दिस इज इक्वल टू, हाँ अभी मैं फिर से बताऊंगी बेटा, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मुझे आई अंडरस्टूड कि तुम्हें समझ में नहीं आया है किस अच्छे से। नहीं मैं वो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, कहाँ जो पर, 2 के बाहर आपने लगाया हुआ है, कहाँ लगाया हुआ है 2 के बाहर, नीचे से मैम थर्ड इक्वेशन, ये वाला, ये वाली, माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा ना। नहीं, नहीं d² की जगह हम रखते हैं -a², मीन्स माइनस पहले रख देते हैं, फिर d की जगह a² रख रहे हैं, मैम समझ में आ गया, सिर्फ d² की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। राइट। पर वो लिखने में इस तरह से लिखा होता है कि कंफ्यूजिंग लगता है वो। नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट करेक्टली, Yes, ma'am, yes, है ना। हम पहले माइनस साइन तो रख ही देते हैं हम, उसके बाद d² की जगह हम a² रख रहे हैं। yes, ma'am, आ गया सर। गुड, सो अब तो कुछ नहीं, अब तो डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो ये क्या आ गया। बट ये अच्छा है, तुम्हें जो भी चीज़ ना समझ में आए हाल के हाल पूछ लो, जिससे कि तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए वो, है ना। अदरवाइज वो छोटा सा कंफ्यूजन बाद में जाके बहुत बड़ा बन जाता है। सो ये क्या आ गया आपका, 2 cos 2x + 3 sin 2x, यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब आप बस आंसर लिख दो। सो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ योर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने निकाल ही लिया था, वो क्या आया था हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया था हमारा c1 e to the power -1/2 x cos of beta x प्लस c2, एंड यहाँ पर ये आ गया आपका -1/13 पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x, राइट। सो यही आपका आंसर हो गया। आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर। जिसको नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से बता देती हूँ साइन वाला। ओके, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इन द केस व्हेन द राइट हैंड साइड इज आइदर sin ax और cos ax, दोनों के लिए सेम रूल है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/fd² sin ax,
1/f d² इसलिए लिखा है कि d² का यहाँ यूज करते हैं बेसिकली हम, कि कैसे d² की जगह हम माइनस पहले रख देते हैं, फिर d की जगह a रख देते हैं, तो 1/f ऑफ -a² sin ax हो जाता है. ओके, so provided denominator is not equal to 0, but if denominator is equal to 0 आ जाता है, तब जब हमने e⁴ax के केस में जैसे किया था वैसे ही यहाँ करते हैं. we multiply by x, we differentiate the denominator with respect to d, and then we substitute d² equal to -a². Okay, and if again this denominator equal to 0, then we repeat the same procedure. Means we again multiply by x, then we again differentiate the denominator with respect to d, and then we substitute d² equal to minus and then a², means d² की जगह a². ओके, सो इस एग्जाम्पल में आपने देखा ही, ये एग्जाम्पल था हमारा 1/d² + d + 1 sin 2x. ओके, तो हमने क्या किया था, माइनस साइन तो रख ही दिया था, माइनस साइन रखने के बाद d की जगह a रखा था, है ना. तो d की जगह a रखा, तो हमारा क्या आ गया, 2² प्लस d + 1 एज इट इज रखा रहने दिया. अब हमने सॉल्व करके लिख लिया, तो ये 1/d - 3 आ गया, पर नीचे अब d² नहीं है, देन व्हाट डू वी डू. सो हम d² बनाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और मीन्स हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अपोजिट साइन का जो भी कुछ होता है हमारा, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड डिवाइड कर देते हैं. तो हमारा ये आ गया d + 3 इन द न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर में हम d + 3 d - 3 आ जाएगा, इसलिए d² -9 आ गया. एंड देन हमने फिर क्या किया कि उसको फिर d² की जगह हमने रखा a² और यहाँ पर माइनस साइन रख दिया, सो d² इक्वल टू -a² रख दिया. ओके, एंड फिर हमने क्या किया कि ये d हमारा ऑपरेटर हमें मालूम है, इसको हमने यहाँ ऑपरेट करा दिया. तो d ऑपरेटर को जब ऑपरेट कराया तो ये आ गया हमारा 2 cos 2x, और ये 3 तो कांस्टेंट ही है, तो जब sin 2x अंदर जाएगा, इसमें ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये d तो ऑपरेट हो गया और 3 के साथ एज इट इज मल्टीप्लिकेशन हो गया. एंड दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड देन वी हैव रिटन द कंप्लीट सॉल्यूशन व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो फॉर टुडे लेट अस क्लोज इट. इसमें अब क्लियर हो गया मैम, वो माइनस वाला. हाँ, माइनस वाला वो कंफ्यूजन रहता है सर, हमेशा बच्चे वहीं अटकते हैं. Yes. वो लेकिन क्लियर कर लेना चाहिए, अदरवाइज फिर